کہ ان خیموں پر گرائے گئے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ دیکھ پائے ہوں، آپ ویڈیوز نہ دیکھ سکے ہوں، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، خون ریزی ہے، لوگ اپنے بچوں کے مردہ جسم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک منظر ہے۔ ہم تو یہاں ویڈیوز بھی نہیں دیکھ پا رہے، مگر وہاں رہنے والوں پر یہ خوفناک لمحے بیت رہے ہیں، اور یہ ویڈیوز دیکھنے والوں میں سب سے مشکل وقت ان فلسطینیوں کے لیے ہوتا ہے جن کے رشتہ دار وہاں ہیں۔ وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیا ان جلتے جسموں میں میرا کوئی جاننے والا بھی ہے؟ وہ چہرے دیکھتے ہیں اور اپنے پیاروں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ انشاء اللہ ان میں میرا کوئی عزیز نہ ہو۔ وہ ان احساسات کے ساتھ یہ مناظر دیکھتے ہیں، مگر اداس نہ ہوں، خوفزدہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ اسلامی تعاون کی تنظیم نے کل ہونے والے رفح حملے کی مذمت کی ہے۔ پریشان نہ ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ دیکھو، اس کی مذمت کی ہے، اب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہوا اس پر ہم انتہائی افسردہ ہیں، مگر ہم مڈل ایسٹ کے ان بہت سے بکے ہوئے لیڈرز کی خاموشی پر بھی افسردہ ہیں۔ دنیا کے ایک بہت بڑے خطے کی خاموشی پر یہ بات ہمیں اور زیادہ افسردہ کرتی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتی ہے، حملے روک دو، عدالت کے فیصلے واضح ہیں، مگر ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو نہیں رکتا، جو ایک درندے کی طرح بار بار حملے کرتا ہے۔ اگر مڈل ایسٹ کے تمام لیڈرز مل کر یہ کہہ دیں، ہم تیل کی تجارت روک رہے ہیں، اس پر پابندی لگا رہے ہیں، مطلب اگر اسرائیل کے ارد گرد تمام ممالک فضائی اور ہر طرح کی تجارتی پابندی لگا دیں تو پوری دنیا اس بات پر ان کا ساتھ دے گی۔ اگر وہ کہہ دیں بس بہت ہو چکا، بچوں اور عورتوں کا قتل بند کرو، معصوم لوگ مر رہے ہیں، اگر وہ بگڑا ہوا بچہ پھر بھی کہتا رہے میں نہیں رکوں گا، نہیں، اور وہ جواب میں کہیں ٹھیک ہے ہم پوری دنیا کی طرف سے تم پر تجارتی پابندی لگا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا۔ دیکھو 3 دن بھی بہت ہیں، شاید ایک ہی دن میں سیز فائر ہو جائے گا، آپ فلسطینی بچوں کو پارک میں کھیلتا دیکھنے لگیں گے، آپ وہ دن بھی دیکھیں گے، آپ درد اور غم سے پاک دن دیکھیں گے۔ دیکھو بس یہ کہہ دو ہم تجارتی پابندی لگا دیں گے، کوئی جنگ، کوئی راکٹ نہیں، کسی اور پابندی کی ضرورت نہیں، بس تجارتی پابندی، اور وہ ایک دن میں انسان کے بچے بن جائیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ صرف اسرائیل ہی برا نہیں ہے، بکے ہوئے لیڈرز، دیگر منصوبے، دیگر فائدے بھی درمیان میں ہیں، اسی لیے کوئی اتحاد نہیں ہے۔ آپ تقریباً جانتے ہی ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ اسرائیل فلسطینیوں کو شمال سے جنوب میں بھیجنا چاہتا تھا اور وہ چلے بھی گئے، انہوں نے 7-8 مرتبہ اپنی جگہیں بدلیں اور آخرکار ایک کیمپ میں ٹھہر گئے۔ رفح میں وہ علاقہ جہاں اسرائیل نے انہیں رکنے کو کہا تھا، پھر جب وہ لوگ سو رہے تھے تو ان کے خیموں کو آگ کے انگارے بنا دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے پر 8 راکٹ گرے اور مناظر انتہائی خوفناک تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ممکن ہے آپ اپسیٹ ہو جائیں۔ ہمارے 45 فلسطینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے، زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور شہداء کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ انہوں نے کہا جنوب میں جاؤ، وہ محفوظ زون ہے۔ اوکے، وہ محفوظ زون میں چلے گئے اور وہاں تم نے شہریوں، معصوم لوگوں پر بمباری شروع کر دی، جیسے ہٹلر لوگوں کو کسی خاص جگہ جمع کرتا اور وہاں ان کا اجتماعی قتل کرتا تھا۔ رائٹ، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے لوگوں کو گیس چیمبرز میں جمع کرنا، تم لوگوں کو ایک مخصوص جگہ جمع کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ محفوظ زون ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہتی ہے یہ محفوظ زون ہے، اور پھر محفوظ زون کہلانے والی اسی جگہ پر جہاں معصوم لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو تم انہیں قتل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا ہوا تھا؟ کیا راکٹس غلطی سے وہاں گر گئے؟ 8 راکٹ، کیا وہ سارے غلطی سے چل گئے؟ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا مالک اسرائیل جیسا ملک، بالکل صحیح مقام پر بمباری کی صلاحیت رکھنے والا ملک، کیا یہ سب وہ غلطی سے کرتا ہے؟ نہیں۔ شروع میں وہ یہ وضاحت دیتے رہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے، مگر اب یہ خون ریزی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ اجتماعی نسل کشی بننے لگی ہے، اب اس کی یہ وضاحت نہیں چل سکتی۔ ذرا تعداد تو دیکھیں، 15,239 بچے شہید ہو چکے ہیں، 10,093 عورتیں شہید ہو چکی ہیں، سب ملا کر 35,984 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 80,643 زخمی ہیں، اور بے شمار ناقابل تصور اذیتوں سے دوچار ہیں۔ جو شہید نہیں ہوئے وہ بھی جیتے جی مر چکے ہیں۔ میں نے کہا ناقابل تصور اذیتیں کیوں؟ اگر آپ کا جاننے والا ہر شخص مر چکا ہو تو کیا آپ اس اذیت کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ کیا اس سب کے بعد آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ ایک بچے کی ویڈیو میری نظر سے گزری، چلیں ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ الحمد لله. فيصل أحمد الخالد. كم عمرك؟ 5 سنين. أمي كانت حامل، طخوا أمي ببطنها، كانت حامل بالشهر السابع. وأبوك وين كان؟ أبوي كان نايم، ولما صحي هو مات هو وأمي أسبوع واحد. في نفس اليوم قدامك أنت شفت؟ قدام شو صار قدامك؟ لما احنا طلعنا على الممر جابوهم وطخوهم قدام. انشاءاللہ اس کی پوری فیملی جنت میں جا چکی ہے۔ دیکھیں بچے کے احساسات کیسے ہو گئے۔ یہ ایسی بات نہیں جسے ہلکا لے لیا جائے۔ بات کرتے ہوئے اس بچے کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہیں، اتنی سی عمر میں اس کے جذبات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اب کیا یہ بچہ زندہ ہے؟ کیا یہ جی رہا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان مظلوموں کی آہیں بہت سنگین نتائج لائیں گی۔
क्या वो मुसलमान जो बा इख्तियार हैं मगर उसे रोकने के लिए कुछ न किया, समझते हैं कि हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोज़े रखे और बस जन्नत हमें मिल गई, हमारा मजहब इस तरह का नहीं है। क्या आपने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा है? देखें कि हमारे पैगंबर अपनी ज़िंदगी में कितने रहमदिल थे। आप उस बच्चे के घर तशरीफ़ ले जाते जिसका परिंदा मर गया था और उसे तसल्ली देते। हमारा मजहब सिर्फ नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का नाम नहीं है। हाँ, ये फ़र्ज़ और लाजमी इबादतें हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते मैंने नमाज पढ़ ली और रोज़े रख लिए, ओके अब मैं जो चाहूँ करूँगा और लोगों पर ज़्यादती करूँगा। आप ये नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट में बहुत से लोग हैं, बहुत से लीडर्स हैं, बहुत सी असर अंगीज़ शख्सियात हैं। गार्डियोला ने भी एक इसराइली से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उस तरह अपना रिएक्शन और अपने ख्यालात ज़ाहिर कर दिए। जबकि ये लोग उस तरह से सोचते हैं हमारा ओहदा छिन जाएगा, खुद को खतरे में डालने की क्या ज़रूरत है। ब्रदर, तुम पहले ही मर चुके हो। अगर इसराइल तुम्हें कत्ल कर दे या मार दे तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम पहले ही मुर्दा हो। जैसे गली कूचों में जानवर फिरते हैं, ये कुत्ते और बिल्लियाँ जो तुम देखते हो उनकी कदर भी तुमसे कहीं ज़्यादा है। तुम मुर्दा हो, जानवरों की सतह से भी नीचे। एक नई सतह ईजाद हुई है, तुम पहले ही उस सतह पर हो। तुम जिंदा रहो या ना रहो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सालों बाद जब तुम्हारे पूते पूतियाँ तुमसे पूछेंगे दादू आपने उस वक्त किया क्या था जब वो नस्ल कशी हो रही थी जिसे फ़लस्तीनी नस्ल कशी कहते हैं, अस्पताल पर बम गिर रहे थे, हज़ारों बच्चे मर गए थे, आपने उस वक्त किया क्या था? क्या आपने उसे रोकने के लिए एक्टिव रोल प्ले किया था? क्या आप कह देंगे कि हाँ, या ये कहेंगे कि मैं वो नस्ल कशी रोक सकता था या इस बारे में कुछ लिख सकता था, मैं एक स्टैंड ले सकता था, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं खौफज़दा था, मैं एक बुज़दिल की तरह सहमा हुआ था। मुझे डर था कि मेरा ओहदा या मेरे माली फ़ायदे खो जाएंगे। या चलें एक और तरह के लोगों का ग्रुप लें जो इस सूरत हाल में खामोश रहे। हाँ, उनके पास अख्तियार नहीं है, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि वो किसकी साइड हैं। राइट, इन लोगों में सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनमें भी बहुत से खामोश हैं। मतलब आपके पास ऑडियंस है, आपके पास फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि ये मसला इसी तरह हल होगा। ये शदीद अवामी दबाव पैदा करके हल होगा। राइट, देखें कि पहले के मुकाबले में इस वक्त अवामी राय कितनी मजबूत है। 7 अक्टूबर से कहीं ज़्यादा मजबूत। जब ज़्यादा मजबूत अवामी राय पैदा हुई तो अमेरिका के हुक्मरान लीडर्स पीछे हटना शुरू हो गए। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम इसराइल को वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये सब जारी रहा तो हम तुम्हें बम नहीं देंगे। वो ये सब कह रहे हैं क्यों? इलेक्शन न हारने के लिए। इन तमाम लीडर्स को अपने फ़ायदों, पैसों और वोटों की परवाह होती है। अमरीकी कह रहे हैं हम तुम्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे टैक्सों से तुम इसराइल को सपोर्ट करते हो और फ़लस्तीनियों को मारते हो। तुम हमारे हाथ खून से रंग रहे हो। जो टैक्सेस तुम हमसे लेते हो उनसे लोगों और बच्चों पर बम बरसाते हो। जब उन्होंने ये सब कहा तो आपने देखा कि कैसे लीडर्स पीछे हटना शुरू हो गए। लिहाजा हम कम अज़ कम अवामी राय तो मुरतब कर सकते हैं ताकि सख्त दबाव पैदा किया जा सके। मगर कितनी उदास और अफसोसनाक बात है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले ये लोग जो इतने ज़्यादा हसास हैं कि एक कुत्ते या बिल्ली के मर जाने पर ट्वीट करते और तशवीश दिखाते हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं कहते जब फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चे मर जाते हैं। मतलब क्या आखिरत में इन चीज़ों का सवाल नहीं होगा? क्या हम पर सिर्फ अपनी नमाजों और रोज़ों की जिम्मेदारी है? सिर्फ एक नेतन्याहू ही नहीं है जिसका आखिरत में फैसला होगा? सिर्फ जालिमों का ही हिसाब नहीं होगा? जुल्म पर राज़ी रहने वालों का भी हिसाब लिया जाएगा? दीन सिर्फ इबादत का ही नाम नहीं है। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आपने इस मसले, इस दीन को मुकम्मल गलत समझा है। ऐसे लोगों का ग्रुप भी है जो कहते हैं कि इन मसाइल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे सर्वे देखे जब पूछा गया इसराइल में जो कुछ हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे परवाह नहीं। ऐसे भी हैं जो कहते हैं इस मसले पर मैं न्यूट्रल हूँ। बहरहाल इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है क्योंकि जुल्म अब इंतहाई बड़ा और खौफनाक बन चुका है। ये सब देखने के बाद आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? कैसे आपको परवाह नहीं? क्या बच्चे तुम्हारे मजहब के नहीं? इसलिए देखो वहाँ एक बच्चा मरा, 5 बच्चे मरे, 10 बच्चे मरे, 1000 बच्चे मरे, 15,000 बच्चे मर गए। तुम्हें परवाह नहीं? जब ये मुसलमान बच्चे बड़े हो जाएं, ये जुब्बे पहने या हेड स्कार्फ, तो हो सकता है आप उन्हें पसंद न करें, इनसे नफरत करें। ओके, तब उन्हें सपोर्ट न करें। फाइन, आप एथियस्ट हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो। अगर एक इंसान की हैसियत से बच्चों की मौत आपके ज़मीर को नहीं झंझोड़ती तो चाहे आपको इसकी खबर ना हो, लेकिन आप अंदर से सड़ चुके हैं। आप अपने फ़ायदों और आसाइशों के गुलाम बन चुके हैं। जिस चीज़ में आपका कोई फ़ायदा नहीं होता आप उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहते। मैं ये भी समझता हूँ कि शुरू में जब 7 अक्टूबर के वाक़यात हुए तो उन्होंने उसे ये रंग दिया कि ये सब हमास ने किया है, वो मॉन्स्टर्स हैं, इसराइल को अपने दिफा का हक है और इसी तरह की बातें की। उन्होंने उसे ऐसा बनाकर पेश किया कि किसी को भी शुरू में मसला समझ ना आ सके। शायद किसी के जहन में ये हो कि चूंकि मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था लिहाजा मैं अब भी कुछ नहीं कह रहा या कह रही, मगर अब मसला बहुत वाज़ेह है, लिहाजा हमें अपने सारे तासुबात एक तरफ रखने होंगे और इस मसले पर
पर एक होना होगा और एक अवामी राय पैदा करनी होगी। अगर आप अपने पोते पोतियों को ये कहने के काबिल बनना चाहते हैं कि मैंने हक की साइड ली थी, इस वक्त वहाँ नस्ल कशी जारी है। अपनी साइड चुने ब्रदर, अपनी साइड चुने सिस्टर। यहाँ मैं खुसूसन अपने इंसानी रिश्ते के भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा जो अमरीकी शहरी हैं, क्या आपको एहसास है कि आपकी सपोर्ट के बगैर इसराइल इन बच्चों को, मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल नहीं कर सकता? मतलब आपकी खरीदी हर चीज में टैक्स भी शामिल होता है और अमेरिका के सरबराह ये टैक्स की रकम लेकर कहते हैं हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अद्दाद व शुमार मौजूद हैं, वो छोटी मोटी अमदाद नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं। अगर अमेरिका इनकार कर दे तो ये नस्ल कशी खत्म हो जाएगी। हाँ, आपकी नीयतें अच्छी हो सकती हैं, आप नहीं चाहते होंगे ऐसा हो, मगर हकीकत यही है कि आपके टैक्सेस के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूँ? आप यकीनन खुद को मुजरिम महसूस कर रहे होंगे। हाँ, शायद आप सोच रहे हों मेरी नीयतें नेक हैं, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं, तो आखिर में क्या करूं? एक अवामी राय मुरतब करें, कहे हम इस नस्ल कशी को सपोर्ट नहीं करते। लिखें, शेयर करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं, इलेक्शन के दिनों में उसी के मुताबिक वोट दें। आप ये तमाम काम कर सकते हैं। हमने शेख उमर सुलेमान से पूछा था, जो यूएस में रहते हैं, वो फिलिस्तीनी हैं, उनके टैक्सेस भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। हमने कहा आपको ये जानकर क्या महसूस होता है कि ये नस्ल कशी आपके टैक्स डॉलर से हो रही है? उन्होंने कहा मुझे एहसास जर्म होता है। हाँ, जाहिर है उनकी नीयत भी बुरी नहीं है, मगर आखिरकार वो रकम वहीं लगती है। ये अदाद व शुमार देखें, 15,239 बच्चे मर चुके हैं। ये सिर्फ हालिया वाकयात में होने वाली अमवात हैं, सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद। मैं उस जुल्म की तो बात ही नहीं कर रहा जो इससे पहले कई सालों से वहाँ जारी है। 35,000 लोगों से भरा हुआ पूरा स्टेडियम पिछले 8 महीनों में जमीन के नीचे जा चुका है, सिर्फ इन जालिमों की वजह से। इसके बरअक्स सूरत-ए-हाल को सोचें। 7 अक्टूबर को एक वाकया हुआ, तब इसराइल ने एक हंगामा खड़ा कर लिया और दुनिया की राय को अपने हक में कर लिया। उसने इस तरह की बातें बनाई कि हमारे बच्चों के सिर तन से जुदा किए गए, औरतों का रेप किया गया, उनकी छातियां काट दी गईं। लोगों ने उन पर यकीन किया मगर कोई सबूत न मिला। फिर जिन्होंने ये सब देखने का इकरार किया था, ये कहने पर मजबूर हुए कि हाँ, दरअसल हमने बच्चों को कत्ल होते नहीं देखा। अगर आपने रफ़ा की वीडियोस नहीं देखी हैं तो अब भी न देखें, मैंने कुछ देखी हैं। जिन लोगों के दिल हसास हैं वो ये बात ना सुने जो मैं अब कहने वाला हूँ। 15 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर दें। एक शख्स अपने जले हुए बच्चे को गले लगा रहा था। आपको बच्चे की हड्डियां तक नजर आती हैं और उसका सिर भी गायब है। वो शख्स बाएं से दाएं चक्कर लगाता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मैंने कोयले की तरह बस एक जिस्म देखा जिसके बाजू कटे हुए थे, वो लोग जिनकी आंखें ज़ाया हो गई थीं, लोग जो तड़प तड़प कर मर रहे थे। अब उसके बरक्स सूरत-हाल का तस्वुर करें। फिलिस्तीन इसराइल पर हमला कर रहा है और 35,000 मासूम लोगों को कत्ल कर चुका है। फिलिस्तीनियों ने 10,000 औरतें कत्ल कर दी और 15,000 इसराइली बच्चे मार दिए। 15,000 इसराइली बच्चे। जरा इस सूरत-हाल का तस्वुर करें। 7 अक्टूबर को उन्होंने कुछ वाकयात का बहाना बनाया और दुनिया की अवामी राय को अपने हक में कर लिया, मगर जरा इसके बरक्स सोचें। आपने सुना कि क्या हुआ था? एक इसराइली बच्चे का सर काटा जाता है, वो पूरे इलाके को जला डालते हैं। क्या आपने सुना कि फिलिस्तीन ने इसराइल के अस्पतालों पर बमबारी की? उन्होंने इसराइलियों को जनूब में जाने को कहा हो और 2 मिलियन लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला हो। तमाम इसराइली जनूब की तरफ गए हों और फिर उन्होंने उनके खीमों पर रॉकेट बरसा दिए हों। अगर ये सब हुआ होता तो क्या दुनिया की अवामी राय यही होती? वो अभी फिलिस्तीन को मामूली सपोर्ट दे रहे हैं। इस तस्वुराती सूरत हाल में क्या वो इसराइल को मामूली सपोर्ट देते, या वो ये कहते कि निकालो अपने न्यूक्लियर बम और ये सारे बम फिलिस्तीनियों पर गिरा दो और बिल्कुल रहम न करो? फिर वो बमबारी करते और लोग उन तस्वीरों को आंसुओं के बगैर सुकून से देखते। कितनी दिलचस्प बात है। हमारे पैगंबर की एक हदीस है, आपने फरमाया तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे वो उसे अपने हाथ से रोके। अगर वो उसकी ताकत न रखता हो तो अपनी ज़बान से उसे रोकने की कोशिश करे। अगर वो उसकी भी ताकत न रखता हो तो अपने दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। आए मिलकर एक स्टैंड लें, ये बताएं कि हम किसकी साइड हैं और जो हम कर सकते हैं वो करें। अगर आप पूछें कि इसराइल का अख्तिताम क्या होगा, क्या इन लोगों का हिसाब लिया जाएगा, तो मैं कहूँगा इनका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। क्या ये इसी दुनिया में होगा? हो भी सकता है, मगर चूंकि इन लोगों की उम्रें अब 40-50 हैं, लिहाजा 40-50 साल बाद ये सब ज़मीन के नीचे होंगे। ये जालिम और उनके जुल्म को सपोर्ट करने वाले और वो जो उसे रोक सकते थे मगर नहीं रोका, सब फिक्र न करो, 100% यकीन रखो कि 50 साल बाद अल्लाह का इंसाफ इन लोगों का हिसाब लेगा। इन लोगों का ऐसा हिसाब लिया जाएगा, इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि अपनी पूरी ज़िंदगियों में किया जाने वाला इनका जुल्म और सितम उस अजाब के आगे कुछ भी नहीं होगा जो इन्हें दिया जाएगा। लिहाजा फिक्र न करो, 100% यकीन रखो कि 40-50 सालों में, हो सकता है 20 सालों में, ये लोग अल्लाह का इंसाफ देख लेंगे। मजलूमों के हुकूक इनसे वापस लिए जाएंगे। ये 35,000 शुहदा हैं। हाँ, हमें मरने वाले उन बच्चों का गम है, मगर वो बच्चा अब कहता है मुझे दुनिया में खाने को रोटी नहीं मिली, मैं प्यासा था, मगर इस जन्नत में अब सब कुछ कितना खूबसूरत है। अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर हमारा यही ईमान है और कुरान हमें यही बताता है। इस वक्त ये 15,239 बच्चे बहुत खुश हैं। हाँ, वो बहुत खुश हैं। 10,000 औरतें, 35,000 शुहदा, उनकी तकलीफ खत्म हो चुकी है, मगर जो पीछे रह गए वो तकलीफ में हैं। लिहाजा हमें उनका सहारा बनना चाहिए भाइयों और बहनों,
اور اسرائیل کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ایک دن یہ ظلم و ستم واقعی ختم ہو جائے گا؟ ہمارا رب سورۃ الاسراء کی 4 اور 8 آیت کے درمیان ان سوالات کے جواب دے چکا ہے۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے زمین پر 2 مرتبہ فساد مچایا اور اس کے نتیجے میں ان پر 2 مرتبہ ظالم مسلط ہوئے جنہوں نے ان کے شہر تباہ کر دیے اور انہیں گھروں سے نکال دیا۔ ایسا پہلی مرتبہ 598 BC میں بیبیلونینز کی طرف سے ہوا اور دوسری مرتبہ 70 AD میں رومیوں کی طرف سے۔ اور آج کے دن سے ان واقعات کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ دوبارہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ظلم جب برقرار رہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، مگر جب بڑھ جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ بڑھتا ہے تو لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ بڑھتا ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے۔ ایک عوامی رائے بن چکی ہے، ایک مشترک شعور پیدا ہو چکا ہے اور ظلم کا خاتمہ اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ پوری تاریخ میں زمین پر بہت سے ظالم آئے اور ہر مرتبہ ہر ظالم کا انجام ایک جیسا ہی ہوا۔ انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ آئیں ہم اپنا کردار ادا کریں، آئیں ہم اپنی سائیڈ شو کریں، اللہ ان ظالموں کو برباد کرے گا انشاءاللہ۔